These political links have emerged. The killed Tausif's uncle is a Congress MLA from Nuh constituency in Haryana. His grandfather was also linked with the Congress. It has come to light that his family has a long-established history with the Congress. That's the latest news break that is coming in. Tausif right now is arrested. He's under arrest. All right, that's the latest news break that is coming in. Tausif is connected to the Congress party in Haryana. His grandfather was a Congress MLA. I want to connect right now to my colleague Tanushree Pandey, who's joining us from Faridabad, where this incident took place at Ballabgarh. You know, Tanushree, it's heartbreaking of the incident that has taken place in 2018. The same man used to harass this young girl. At that point of time, an FIR was filed. Why was no action taken then? Absolutely, Preeti. It's an absolutely shocking incident, and barely 30 kilometers from the national capital, a girl, a 21-year-old woman who was giving a final exam for BCom honors final year, was shot dead at point blank range. Now, I spoke to the family. Her mother is absolutely inconsolable, but the sisters told me that the same man, the same accused, basically tried to kidnap the woman in 2018 as well. A complaint was filed, but the police tried to basically do a settlement outside the police station. They asked the girl's family, the victim's family, to do sort of a reconciliation, and that is when the entire matter was, was brushed under the carpet. But now, after 2 years, on 26th of October 2020, the same accused, the same man, was present outside the college with a gun. There was no PCR van which was present outside the Ballabgarh college. When the girl came outside the college after her exam, she tried, and in the video, in the frightening video, the girl can be seen dodging the gun. The girl can be seen dodging the accused, and she's making desperate attempts to save herself. But even after that, she was shot in broad daylight at point blank range, Preeti. So now definitely it raises a lot of questions on women's security, on women's safety, and definitely on the law and order situation of Haryana. This area where the crime happened, Preeti, is barely 30 kilometers from Delhi, from the national capital, from the parliament. And this kind of incident happening at 3:30 in the afternoon in broad daylight is definitely sending shockwaves across the country. The sisters also told me that the police never basically took any concrete action against the accused, because the accused allegedly had political connections, and that is why the police never tried to take any concrete action against the accused. The same incident happened in 2018, but no action was taken against the accused. And they also told me that the accused were forcing the girl to basically convert and marry him, and when the girls did not agree to it, the man shot her dead. So this is what has exactly happened, and it raises a lot of questions on women's security, women's safety, and the law and order situation in Haryana. Preeti, back to you. Tanushree, appreciate you joining us. We're going to continue to come back for more details there and also speak to the family of the victim. Meanwhile, this murder of a 21-year-old girl at point blank range has triggered massive protest in Faridabad's Ballabgarh. The victim's family and hundreds of local residents have taken to the streets, staging protests demanding justice for Nikita. They're demanding strict punishment for the two accused who shot Nikita dead. Angry locals have blocked National Highway 19, and there's heavy policing in the area. The two accused have been arrested so far, but the victim's mother has said she wants the accused to be hanged. The victim's brother has also alleged that this is a case of love jihad. The situation remains tense in Ballabgarh, and police officials are on high alert. I want to connect right now to my colleague Arvind Ojha, who's joining us live. Arvind, a clear connection to the Congress has emerged where the accused is in question. Was that the influence that was reached to stem the FIR in 2018? देखिए, जो फैमिली है निकिता की, उनका कहना है कि 2018 में FIR कराई थी किडनैपिंग की, जब जो आरोपी तौसीफ है जिसने अब जो निकिता है उसको गोली मारी थी, तो FIR कराई थी, लेकिन पुलिस के कहने पर और खुद इंडिया टुडे से निकिता के फादर ने कहा, चूंकि बेटी का मामला था, बात आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, इस वजह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था।
कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सोर्स है वो ये बताते हैं कि जो तौसीफ है उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिसमें कांग्रेस से विधायक है, उसके कुछ रिलेटिव, उसकी भी बड़ी भूमिका रही होगी। और जिस तरीके से जो सीसीटीवी सामने आया है, जिस तरीके से निकिता को गोली मारी गई है, कहीं ना कहीं और कॉलेज के ठीक सामने से ये पता चलता है कि जो तौसीफ है उसका माइंडसेट किस तरीके का है। कहीं ना कहीं उसको बैक सपोर्ट रहा है, इस वजह से इस तरह की वारदात को उसने अंजाम दिया है। दिन दहाड़े पहले रोका है लड़की निकिता को, उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसकी कनपट्टी पर गोली मारी है और वहां से फरार हो गया है। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। दोनों जो मेन अक्यूज हैं, रेहान और तौसीफ, उनको अरेस्ट किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और देखिए जरा, आपको दिखाना चाहूंगा, ये फरीदाबाद मथुरा हाईवे है। जो फैमिली है पूरी तरह से सड़क को जैम कर दिया गया है। यहाँ पर हैवी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और उसके बाद एक भीड़ यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि तौसीफ का जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसकी फैमिली में कई पॉलिटिकल कनेक्शन रहे हैं। उनकी रिलेटिव में कांग्रेस के विधायक भी हैं, उसके दादा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री भी थे। शायद यही वजह है कि परिवार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो केस है उसमें ढिलाई हो सकती है। इस वजह से फैमिली है, उनकी डिमांड है कि कोई सीनियर ऑफिशियल आए, खुद जो सांसद है वो यहाँ पर आए और पूरे मामले को देखें और जो पूरा चार्जशीट है जल्द से जल्द दाखिल हो, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो बनाया जाए, उसके बाद आगे की सजा दिलाई जाए। इसके अलावा भी एक कहीं ना कहीं जो डर है वो फैमिली को सता रहा है। शायद यही वजह है कि जो फरीदाबाद मथुरा हाईवे है उसे पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। और ये देखिए आप, हरियाणा, ये फरीदाबाद और आसपास की जो तमाम महिलाएं हैं वो खुद यहाँ पर अब धरने पर प्रीति बैठ गई है। लेकिन जो फैमिली बैकग्राउंड है तौसीफ का, वो भी अब सामने आया है, जिसमें उसकी फैमिली से कई ऐसे जो रिलेटिव है वो कांग्रेस से विधायक भी हैं और फैमिली में कई और बड़े पॉलिटिकल लीडर रहे हैं जो हरियाणा में जिनका रसूख रहा है। अरविंद, एक और सवाल पूछना चाहूंगी। तौसीफ तो अभी हिरासत में है, जो ड्राइवर था उस कार का, क्या उसको भी हिरासत में ले लिया गया है अभी? जी बिल्कुल, देखिए दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया, दोनों को अरेस्ट कर लिया। फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर है ओपी सिंह, उन्होंने बताया कि जो तौसीफ है जिसने गोली मारी थी, जो दूसरा को अक्यूज था रेहान, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रेहान नूह के हरियाणा से उसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। वेपन कौन सा था वो अभी रिकवर करना बाकी है, उसके लिए रिमांड पर लिया जाएगा किस वेपन से गोली मारी है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ दिख रहा है कि दिन दहाड़े और काफी क्राउडेड एरिया है, वहां पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पुलिस के जो सोर्स है उनका कहना है कि अगर उनमें से किसी ने भी शोर मचाया होता, चूंकि कॉलेज का कैंपस है, तो शायद इस तरह की वारदात नहीं होती। तो पूरी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, खासकर कॉलेज के अगर आसपास की बात करें तो हमेशा पीसीआर वैन वहां पर खड़ी रहती है, कॉलेज हो या स्कूल हो, लेकिन वहां पर किसी तरह की पीसीआर वैन अब वहां खड़ी नहीं थी। लेकिन अब फैमिली धरने पर है तो देखिए आपको पुलिस फोर्स, जरा कैमरामैन रितेश मिश्रा दिखाएं, अब पुलिस फोर्स यहां पर जरूर खड़ी हो गई है। पहले वारदात के पहले अगर पुलिस तरह से अलर्ट होती तो शायद इस तरह की वारदात नहीं होती। लेकिन अब एक एक करके जो पुलिसकर्मी है, जो इलाके के एसडीएम है, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। तो तमाम एक तरीके से कहें तो पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर जी। ये अभी क्या फैमिली की डिमांड है, क्या एक्शन आप लोग जी हमने बात कर रहे हैं, और ये जो इलाके के एसडीएम है वो खुद भी यहाँ पर इंटरेक्ट कर रही हैं लोकल लोगों से, ताकि फैमिली को यहाँ पर समझाया जा सके। और ये जो मेन हाईवे है, चूंकि काफी गाड़ियां आप देखें तो यहाँ पर जाम में लगी है, तो ये कोशिश है। मैम क्या एफर्ट है आपकी? देखिए मेरी तरफ से ये एफर्ट है, मेरी पूरी टीम की तरफ से ये एफर्ट है कि जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसको रिजॉल्व कर दिया जाए। दोनों आरोपितों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं बार बार उनको यही बताना चाह रही हूँ कि आप निश्चिंत रहें, अगर हम 5 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर सकते हैं तो निश्चित ही न्याय मिलेगा। अभी फैमिली क्या आपसे डिमांड कर रही है? कोई कम्युनिकेशन हुआ? फैमिली मुझसे न्याय की डिमांड कर रही है और बोल रही है कि उस पर कार्यवाही हो, और मैं उनको बार बार यही बता रही हूँ कि कार्यवाही की शुरुआत तो कल ही कर दी गई थी। पहला आरोपित कल ही पकड़ लिया गया और दूसरा भी आज सुबह पकड़ लिया। मेरा एक सवाल है आपसे कि कॉलेज की बात करें या फिर स्कूल, हमेशा ये गाइडलाइंस है कि वहाँ पर पीसीआर वैन खड़ी होनी चाहिए, तो क्या वहाँ पर कोई पीसीआर वैन खड़ी थी जहाँ पर ये पूरी वारदात? जितने भी लैप्सेस हैं उनको स्टडी किया जाएगा। मैं खुद भी एक लेडी हूँ, मैं आश्वस्त करती हूँ ऑल द लैप्सेस विल बी लुक्ड इनटू और एक एक लैप्स को रिजॉल्व। ये लापरवाही मानती है, एक्शन होगा?
जो भी लैप्सेस हम आइडेंटिफाई करेंगे उस पर एक्शन लेके उसको ठीक किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, एब्सोल्युटली नो डाउट इन दैट। देखिए खुद इंडिया टुडे पर जो ये एसडीएम है, इन्होंने कहा कि ये खुद भी महिला है और लैप्सेस जो भी है उसको ठीक किया जाएगा। 5 घंटे के अंदर अक्यूज, इनका दावा है कि 5 घंटे के अंदर दोनों अक्यूज है उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन फैमिली का गुस्सा फूटा है। उन्होंने अपनी बेटी को गंवाया है और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल है। देखिए ये हरियाणा वही है जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सबसे पहली शुरुआत हुई थी। ये हरियाणा वही स्टेट है, लेकिन अगर यहाँ इस तरीके से दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस के बाहर एक लड़की को काफी दूर तक चेस करने के बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार करके आरोपी फरार हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। प्रीति, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का अरविंद ओझा। Arvind was speaking to the STM, and we're moving on to the next story. And one must point out the stark difference of how the administration handled it. You have the STM there who's directly talking to the press, saying that she's doing everything she can to make sure that the family feels assured that justice will be delivered. What happened in Hathras is a different story. The reason why I bring it up is because Hathras was in the news today. The Supreme Court had ordered that in all aspect of the Hathras case will be considered